ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਖਣ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਮਲ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਈਦਜ਼ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ, ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਯਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੀਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਰਕ ਖਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਜਾ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ੁਰਲੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨੋਹਾ ਪੜੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਮਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰੀਏ, ਲਿਮਟ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੱਦ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਾਠਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ, ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਦ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਹੈ ਤਕਫੀਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ ਮਲਕ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਆਏ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜੋ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜੋ। ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਜ਼ਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੜੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ 2 5 10 ਮਹਿਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹਦਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਇੰਝ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਤਬਲੀਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗ ਦੇਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੌਮ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਮਰ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰੇ ਮਿਊਟ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਛਿੜਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਾਕੁਮ। ਪੱਪੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੋਹਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਕਦਰ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਔਰ ਮਾਇਆਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੋਹਾ ਪੜਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਤਲਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਦਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਗਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠਾਈ ਸੁਣਨੀ ਸਭ ਨੇ ਬਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੁਲਹਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਹਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁਲਹਦ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਹਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਨੂਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਨੂਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਦੁਆ ਕਨੂਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕਹੇਂਗਾ, ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰੇ ਯਾਸੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਬਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਉੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਹਦਨੀ ਫੀ ਮਨ ਹਦਾਇਤ ਆਫਿਨ ਫੀ ਮਨ ਆਫਾਇਤ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਫੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਿਮ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੁਆ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ ਗੁਮਾੜੇ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਰਨੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲ ਦੌੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾਓ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਅਸ਼ਿद्दाउ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਫਰ ਆਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ, ਐਸਾ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਕਫੀਰ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਤਕਫੀਰ ਤੇ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਤਦਾਈ इंशाल्लाह तकफीर तो कर रहे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आमिर भाई पप्पू की भी नहीं की जा सकती, जबकि उसमें कोई मुसलमानों वाली बात है ही नहीं, माजरत के साथ। इसके अमल में तो कोई बात मुसलमानों वाली पाई नहीं जाती,
لیکن نظریات اس کے مسلمانوں والے ہی ہیں. مطلب عامر بھائی ایک منٹ, تو پیر صاحب اگر میں ماں بہن کی گالیاں دوں ساتھ میں دمال بھی ڈالوں جس طرح چلے ڈالتے تھے ہمارے یا ڈالتے ہیں, تو پھر میں مسلمان کہلاؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں. یا میں دن رات ساتھ دمال ڈالوں اور یہ بھی کہوں شاطمیت ہوگی, چھاتمیت ہوگی, خود بھی شاطمیت خود ہی کراؤں اور ساتھ میں دمال بھی ڈالنا شروع کر دوں, پھر مسلمان اے بھی تیری جلد بازی ہے. مطلب ہے پچھلے لیکچر سارے دا کوئی فرق نہیں نہ پیا, گل تو میرے نہ کرن لگے نا. عامر بھائی پھر مسلمان دی ڈیفینیشن کی ہے, منو آپ یہ صاحب ڈال دیں کہ مسلمان دی ڈیفینیشن کی. جے میں تھا تے تاں دس تے جا میں صحیح گل نہ کیتی تے پھر مینوں آکھی میں ایتھوں تو غلط گل کیتی. ڈیفینیشن میں کہتا ہوں کہ ڈیفینیشن یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان کی تعریف یہ ہے, مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. آپ کی زبان سے کوئی مسلمان نہ محفوظ ہے. تو سنو بتا دیجئے عامر بھائی, کیا پپو کی تکفیر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پپو ناراض اس حدیث کو لیا جائے تو عامر بھائی جان کے مان جاتا ہوں, اگر یہ حدیث لی جائے فوت ہو چکی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں. عامر بھائی اگر یہ حدیث کا مفہوم لیا جائے, دوجی بار تینوں میں پیانا تو چپ کر جا. میں یہی گل لگوں جواب جے ماڑا دیتا نا تے میرے جواب تو بعد تو بشک او دے جڑا کوئی ایڈنگ کرنی ہوئی نا آکھی میں یہ تساں چنگا جواب نہیں دیتا تے چاہے چیز ایڈ کر لو. تینوں اجازت ہے, مینوں تے گل کر لیندے. ہن دو بار میں تینوں کہہ دیتا, میں پھر بار بار نہیں کہنا چاہتا. پھر اسکانی بھائی جو آپ نے بات کہی ہے یہ ہے مسلمان کی صفت, یہ ہے اس کا وصف کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ اس کی خوبی ہے, صفت ہے, وصف ہے. لیکن یہ اینڈ نہیں ہے, یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں وہ سب کافر ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اس طرح ہوگا, جس نے 6 قتل کیے ہیں وہ پھر گیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, وہاں پر پاکستان میں کوئی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ نہیں, اللہ ماشاء اللہ. جا کے دیکھیں ہمسایہ میں کہتا ہوں گلی میں سے گزرا نہیں جاتا. میں نے تو آ کے پہلے 2-3 روز نوحہ پڑھا ہے کہ پاکستان میں کیا دیکھ کر آیا ہوں 2 سال بعد. تو وہاں پر تو کوئی بھی کسی کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ نہیں ہے. تو کیا وہ سارا غیر مسلموں کا معاشرہ ہے؟ اس طرح سے تکفیر نہیں کی جا سکتی کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے, صفت اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. جی بہت شکریہ. میں نے تو یہی بتایا تھا, پپو صاحب نے یہ پوچھا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. میں نے کہا یہ ہے مسلمان کی تعریف. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے, یہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے تعریف پوچھ لی, میں نے بتا دیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ پپو صاحب کی بھی تکفیر نہیں کی جا سکتی جبکہ مسلمان والی کوئی بھی ایک بھی چیز نہیں, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو ننگی گالی دے دی گئی. اور یہ انسان آ کر یہ کہنے لگا, یعنی اب تو انت ہو گیا نا. ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ قبر کو ایک حد تک کودتے ہیں, اس کے بعد تو پانی ہے, پانی تک نہیں لے جاتے. اب کود رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, پھر بھی کود رہا ہے. کیا ہے؟ قبر کا ایک جو ہے ایک لیول ہے, اس لیول تک اس کو کودتے ہیں, اس سے نیچے نہیں. اب یہ انسان وہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے دیکھا, ہمارے سامنے ہے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو ننگی گالی دی ان کے چاچا زاد بھائی معلم اعظم سیفی نے. تو پپو صاحب آ کر یہ دفاع کرنے لگے کہ بھئی ان کا عقیدہ تو ہے نہیں, کون سی ننگی گالی دی ہے, کون سی ننگی گالی دی ہے, بتاؤ. ننگی لگی کون سی ننگی گالی. یہ یہاں تک کہ نبی کی گالی کو بھی انہوں نے ہلکا سمجھا. آپ بتائیے وہ کون سا گن ہے اور کون سی اچائی ہے پپو بھائی میں کہ جس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. بہت شکریہ. بلا شبہ یہ ایمان کی طاقت اور کمزوری میں ایک پہچان ہے, ایک کرائٹیریا, ایک معیار ہے جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے, اور جتنی زیادہ محبت ہے اتنا اس کا زیادہ ایمان ہے. جتنی کمزور محبت ہے, بالکل کچے دھاگے کی طرح ایمان لے کے پھر رہے ہیں, ان کا ایمان اور ان کا نبی سے تعلق وہ کچے دھاگے کی طرح ہے. لیکن پھر بھی ہے تو صحیح نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بندے
उन पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो मोमन तो तड़पता है, मोमन तो मतलब आपे से बाहर हो जाता है, जज्बात उसको कंट्रोल करने मुमकिन नहीं होते, क्योंकि उसके ईमानी जज्बात जुड़े हुए हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ, जिसको हम मुनकर हदीस भी कह देते हैं ना, जवेद अहमद गामदी। उसको किसी ने पूछा भाई इस्लाम क्या है या मुसलमान या इस तरह को, कोई मेरे एग्जैक्ट ज़हन में अल्फाज नहीं है सवाल के, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से जो कुछ भी तालीमात निकली हैं, उनसे उस सरचश्मे से जो भी निकली है बात, वो हदीस हो कुरान हो, साबित हो जाए कि ये उनकी बात है, उसी का नाम शरीयत है, उसी का नाम इस्लाम है, वही दीन है हमारा। तो अगर एक बंदा नबी पाक की ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, ईमान का इजहार करता है, उसके बाद नबी पाक की तौहीन इतनी हो रही है, गालियाँ दी जा रही हैं, और बंदा उनके मुतल्लक अपनी ईमानी गैरत और हमीयत का मुजाहरा नहीं करता, तो वो कच्चा धागा लेके फिर रहा है। बाकी और क्या उसको कहा जा सकता है? काफिर तो फिर भी नहीं कहा जा सकता। तकफीर करने के लिए, और वो भी आपको पता है मुअय्यन तकफीर करने के लिए जो शराइत हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, बाकी सारी ये जो बातें हैं इनको आप ऊपर वाले लेवल में कह सकते हैं कि ये गुमराह है बंदा, कमज़ोर ईमान का है, मतलब थका हुआ मुसलमान है, या इसका इस्लाम किसी काम का नहीं है, इसका ईमान किसी काम का नहीं है, बस अपने ये जाने खुदा जाने, लेकिन हम उसकी तकफीर करें किसी भी सूरत में। एक बात कहूँ अमर भाई, आज मैंने इसको एक 47 सेकंड की वीडियो सुनाई है, खुदा की कसम इस बंदे के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला गया, जिसमें वो मिर्ज़ाई कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार मैं एहतजाज यार बाद में ये शादी यार मैं गाल ना करे करना बात, मैं अपना एक एहतजाज मुझे रिकॉर्ड करने को मुझे म्यूट क्यों करते हो यार? नीचे ये देखो लोग क्या क्या गलाजत लिख रहे हैं, इसको कोई नहीं म्यूट। तो सारा जिंदगी मिर्ज़ाई च बैठे रहे यार, कदी अल्लाह ले बंदे च बैठ ले करो। ਮੋਡੀਏਟਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਉਠਾਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। कौन है नीचे? क्या हुआ मुझे नहीं समझ में, तो ड्राइव कर रहा हूँ। वो चंगेज कानी भाई और आमिर भाई, मैंने इसको एक 47 सेकंड की ऑडियो सुनाई है, जिसमें एक मिर्ज़ाई कह रहा है कि ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माज़ल अस्तग़फिरुल्लाह, कि एक शख्स उनके पास आया, उसके मुंह से शराब की बो आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्या पी कर आए हो? तो उसने कहा कि मैं जो है ना शहवाज़ रीगल पी कर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी दो, और उसने नीट दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें 2 घूंट पानी भी डाल कर दो। अस्तगफुरुल्लाह। पप्पू मलिक, तुम्हें कोई ईमानी गैरत नहीं है यार तुमको कभी एक गल तो सुनो, मुझे 47 सेकंड का क्लिप सुनाया था, मेरा जवाब ईमान ने अभी भी ईमान ने मलामत नहीं की कि हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्ज़ाई इतनी गुस्ताखी कर रहा है, इतनी गुस्ताखी कर रहा है। कम अज कम मैं उनको बुरा भला नहीं कह सकता, कम अज कम मुजम्मत थोड़े मीठे अल्फाज में भी कर लूं। भाई मैं तब करूंगा ना, अगर आप सांस लोगे मुझे टाइम दोगे तो मैं मजम्मत करूंगा ना मेरे भाई। और तुम्हारी ईमानी गैरत नहीं जागी? तुम यार कौन सी मिट्टी की बने हुए? तो आप बोलते रहो, जब आप थक गए, जब मुझे इजाजत दोगे फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं गैरत दिखा दूंगा आपको मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है, दिखा गैरत। जी देखिए, वो जो आपने हदीस सुनाई थी, वो बंदा जो बात कर रहा था, तो हमें तो नहीं पता, ठीक है, कि वो कौन सी बुक से लेके आए हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली 100% वो कोई ज़ईफ़ हदीस होगी। तो यार मेरे भाई, उनका तो काम है ना ज़ईफ़ हदीस का बोल रहा था, ऐसी कोई हदीस नहीं है। सुन तो लो मेरी भाई, सुन तो लो ना। शिवाजी कौन सी ज़ईफ़ हदीस में लिखी है यार? कुछ खुदा का खौफ कर लो, कुछ कोई उनको यार नवीद साहब, मेरा पूरा तबसरा सुन तो लो। पहले खुदा की इरदा या आपने ऐसी जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸ਼ਰਮ ਰਹੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਈਫ अस्सलाम वालेकुम। ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਕੋ ਡਰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਕਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ईमान ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ईमान ਜ਼ਬਾਨ वेख लियो, लिया है ईमान शवाज़ वेख लियो, ईमान वेख लियो। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ 570 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ 2005 ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਦੀਸ ਘੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਪੱਪੂ ਲਓ। ਮਲਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਹੀ ਲੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੂੰ ਕਰਾਓ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਬਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਮੁਰਜਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਨ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਠੀਕ ਹਨ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੇ ਹੋਇਆ ਅਜ਼ਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ- ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਚਲ ਉਹ ਠੀਕ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਸ ਖੌਫ ਬਸ ਖਾਓ ਫਿਰ ਯਾਰ। ਠੀਕ, ਬਸ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਬਸ ਬਸ ਜਜ਼ਾਕੁਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ। ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਹਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ मिर्ज़ाई ने झूठ बोला है ऐसी कोई रिवायत ही नहीं है कोई ऐसी हदीस दूर की बात है किसी बात में झूठ भी नहीं बोला ਮੇਰੇ हुआ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ एडा बेगैरत ਯਾਰ यार ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਈਮਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਆਦਾ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪ ਅਗਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ उस अच्छा भाई, जी फिर अच्छा आपकी बात मैंने सुन ली और आमिर भाई ने भी सुनी होगी और पप्पू साहब की बात भी हमने सुन ली। बआन ही जिस तरह से कादियानी जवाब देते हैं बआन ही वही जवाब उन्होंने दे दिया। क्या कहा? कोई ना कोई तो होगी, भले ऐसे कतई नजर के वो ज़ईफ है, कोई ना कोई होगी, तुम्हारी किताब ही से तो पढ़ी है। यही बात कादियानी ने की, यही बात इनके मुंह से निकला। कुछ फर्क देखा आपने जब आपने ये बात की कि किसी कादियानी ने ये कहा था जो शराब वाली बात, और वो मैं सुन चुका हूँ। इससे बढ़कर उस खबीस ने ये कहा कि ये आगे उनको कहा गया था कि बड़ी तेज है, पानी डाल इसमें, ये कहा था यूं, समझ रहे हैं कि ये जो तुम मुझे पेश कर रहे हो ये तो बड़ा तेज है चक्कर, इसमें जरा पानी डाल, मजीद पानी डाल। उस खबीस ने ये भी कहा था। अच्छा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बआन ही कादियानी जो जवाब देते हैं ना, भाई ये तो तुम्हारी किताब से हम पेश कर रहे हैं, बआन ही यही कहा। भाई कोई ना कोई किताब से तो वो होता है ज़ईफ़ और ये बस ये कहकर बात को टोल मटोल कर दिया। क्या कोई मुसलमान इस तरह का जवाब देगा? आप बताइए, कोई मुसलमान इस तरह की जवाब देगा? वो नहीं देगा। एक भी बात
हमारे भाई पप्पू जी में, और आप देखें माजरत कर रहा है, गोया कि हम पर एहसान कर रहा है, कहता है बिला बगैर किसी कंडीशन के मैं माफी चाहता हूं, और फिर हम लोगों पे लानत करके हम लोग को गालियां देकर कि तुम लोग कब्र की पुजारी ये कर रहे हो, खुद अपने आप को क्या किया, साफ कर दिया। माजरत अपनी गलती पर जो है वो नादामत हो है, जानता है मैंने गलती की, लेकिन चूंकि हम लोग बड़े जालिम हैं इसलिए हम लोग को लानत करके, हम लोग को मलामत करके कहता है मैं जो है माजरत करता हूं। पप्पू साहब, अगर आपने माजरत करनी है तो आप अल्लाह के सामने माजरत करें, और माजरत ऐसा हो जिसमें वाकई लगे कि आपने माजरत की है। ये तो आप दबाव में आकर और अपने आप को बचा रहे हैं और माजरत कर रहे हैं। पहले तो नबी अलैहिस्सलाम की कोई जो है वो बात हमने आपके सामने पेश की, जिन्होंने शातियत की, आप उनके साथ मिल गए, फिर हमें भी लानत कर रहे हो और कह रहे हो मैं माजरत करता हूं। हमसे माजरत करोगे? हमसे माजरत करने की क्या जरूरत है? और हमें सुनने मेरी बात सुनने, मैंने आपसे सारे भाइयों से माजरत की थी ना, माजरत गई बाढ़ में, मैं नहीं माजरत करता हूँ, जो उखाड़ना है आप लोग उखाड़ दो, मैंने ठीक है, मैंने मैं आप पर फतवा दूंगा ये औकात ही नहीं है कि तुम काफिर हो, तुम काफिर हो पप्पू मलिक, तुम मुल्हिद हो। पहली बात ये आप लोगों की जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ ले, तू मुल्हिद है, तू किसी काफिर का बच्चा है और तू काफिर है, तू काफिर है। आप लोगों की वैसे इतनी औकात नहीं थी, मैंने आपको इज्जत दी, माजरत की, वैसे इस काबिल मैं आपको समझता नहीं हूँ, वल्लाही मैं नहीं समझता कि आपकी आप और आप बन नजीर को छोड़ के, आप दो भाइयों को छोड़ के, बाकी जो बाबों के ये मसूद साहब को भी छोड़ के, बाकी ये अमर सियाल को भी छोड़ के, ओवरऑल जिनका मैंने दिल दुखाया है, जो बाबों के पुजारी हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनसे मदद करो। मैनू केड़ी बाबे दी पूजा करने तक क्या तू भाई चलो तो अभी छड़ के निकल जाओ, तू निकल दे, मेरे नाल मदद करनी पे ऐसा बात है, मेनू ऐसा बात है, मेनू मदद करनी चाहिए तेरी। अब सुन तो लो भैया, सुन लो। आप ये कह रहे हैं ना कि हमारी औकात नहीं है, तो औकात तो आप देख रहे हैं किसकी है और किसकी नहीं है। आप नबी तक भी उनको भी गालियां देते हैं और उनके गाली देने वालों में शामिल होते हैं, और उनकी पीर साहब आपके ऊपर मेरी तरफ से लानत कबूल फरमाए, क्योंकि आप एक मुसलमान पे इल्जाम लगा रहे हैं। अभी मैंने कहा कि सहाबा पे के जो गुस्ताखी करे मुझे मौत कबूल है, आप मुझे कह रहे हैं मैं नबी को गालियां देता हूं, इल्जाम तो लाया है जेड़ा साहब मेरी तरफ से आप लानत कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। ते जेड़ा तू मेरे तरफ इल्जाम लाया बाबे ने कबूल है। अभी एक मिनट सब्र कीजिए भाई, कब्र के पुजारी, एक मिनट सब्र कीजिए। आपने जो लानत की मुझे कबूल है, और इसका हिसाब इंशाल्लाह क़यामत के दिन हम दोनों कर लेंगे। आपने मुझे लानत पहले भी की, आज 2 दफ़ा किया, तमाम भाई गवाह रहे, अल्लाह तो गवाही है, वहाँ इंशाल्लाह इसका फैसला होगा। मुझे कबूल है आपकी तरफ से, ठीक है। अब भाई आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि औकात नहीं है, औकात आप देख लीजिए, घटिया हरकत आपकी, गंदी हरकत आपकी, गंदी बातें आपकी, और खामखा के बचकाना जो है वो जज्बात आपके, 2 कौड़ी के जज्बात आपके। ना आपके पास कोई इल्म है भाई, ना आप कोई आलिम दीन है, ना आपको किसी मजलिस में बैठने का डंग है, समझ रहे हैं। अगर आपके परदादे के बराबर कोई आदमी हो, उसको भी आप गालियां देंगे और बदतमीजी करेंगे और उसको लानत करेंगे। ये तो तुम्हारी औकात है। क्या एक अच्छे माशरे में तेरे जैसे इंसान की औकात है? आप खुद बोलिए, क्या ऐसे आदमी को जूते पड़ते हैं या नहीं जो इस तरह की हरकत करता है? भाई आप कोई जो है सरदार के बेटे नहीं हो, आप हमारे कोई आका नहीं हो, हम आपके खादिम नहीं हैं। जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं, इससे ये मालूम होता है कि आप ही की कोई औकात नहीं है, वरना अगर आपका कोई औकात होता तो आप इस तरह की हरकतें करते ही नहीं। अब आप देख लीजिए, हमने आपको क्या कहा, हमने आपको ये कहा जब आपके सामने पेश की गई, क्या नाम है यहाँ पर, कुड़ू 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 भाई ने पेश की, आपने क्या कहा, वही जुबान जो कादियानियों की है वही जुबान तुम्हारी है। क्या कहा, कोई ज़ईफ हदीस हो, कोई तो कोई ना हो, कादियानी भी यही कहते हैं कि भैया तो तुम्हारी किताब से है, वो कता नजर ज़ईफ है, क्या है तो तुम्हारी किताब, क्यों लिखी तुम लोगों ने, क्यों लिखी? तुम भी वही कह रहे हो, ये है तुम्हारी औकात। तुम भी वही कह रहे हो कि ये तो तुम्हारी किताब से है, ये तो तुम्हारे बड़ों ने, तुम्हारे बूढ़ों ने लिखा हुआ है, तुम्हारे बाबाओं ने लिखा हुआ है,
तो पेश किया, कौन सा जो है आसमान गिर गया? ये है तुम्हारी औकात। समझ रहे हैं भाई? तो पप्पू साहब, फिर मेरा वही सवाल है कि तुम में वो कौन सी बात है जो मुसलमानों की हो और जिसमें आपकी तकफीर नहीं की जा सकती हो? वो कौन सी बात है बताइए। चला गया पप्पू, खुद चला गया या उसको उतारा गया? भाई पप्पू खुद चला जहां पाक भाई खुद चला गया या यकीनन उतारा गया होगा, यकीनन उतारा गया होगा, क्योंकि आमिर भाई ने मॉडरेटर ऐसे बनाए हुए हैं कि उन्होंने उतार दिया होगा। चले ठीक है। आमिर भाई पप्पू साहब में मैं उतार आमिर देता भाई हूं भाई, चेक करें कि मैं चेक करता हूँ किसने उतारा। अच्छा देख लीजिए आमिर भाई, आमिर नजीर साहब, पप्पू साहब में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें ये इंसान जान जाए कि इसके पास कोई इल्म है। कोई ऐसी बात नहीं जिससे ये जान इंसान जो है परख ले के कोई शरीफ इंसान है। कोई भी ऐसी बात नहीं इसमें जो मुसलमान वाली बात हो, कोई भी नहीं है, एक जरा भी नहीं है। जुबान वही कादियानियों का, हरकतें वही कादियानियों की, हर बात पे लानत कर रहा है, हर बात पे लानत कर रहा है। और वही कादियानी क्या कहते हैं, भाई ये तुम्हारे बाबाओं की किताब है, हर कादियानी से पूछ लो भाई फलाने शातियत की थी, ये वो तुम्हारी किताब में नहीं है, वो तुम्हारे किताब से पेश नहीं कर रहा है, जाकर जवाब दे दो। पप्पू भी यही कह रहा है। तो पता नहीं वो कौन सी बात है जो आपको नजर आ रही है, हमें नजर नहीं आ रहा भाई कि कादियानी पप्पू में कोई मुसलमानों वाली बात भी है। बाकी इल्म तो अल्लाह पाक के पास है, कौन मुसलमान और कौन गैर मुस्लिम। लेकिन मुसलमानों वाली बात आमिर भाई माजरत के साथ बार माजरत, पप्पू में कोई मुसलमानों वाली बात है नहीं। अभी देखे ना, फौरन जो है फतवा लगा दिया मुझ पे और बाकियों पे कि ये बाबू के पुजारी हैं, और जब बात आई कादियानियों की गुस्ताखी की तो तावीलें देना शुरू कर दी कि हो सकता है कि ये ज़ईफ हदीस हो। यार ये कोई नहीं उसमें बात तो ये शवाज रीगल का उस बंदे ने नाम लिया है भाई। तब शराब एक इंसान को इसमें इतनी समझ ही नहीं है कि तब वहां कब नाम था शवाज रीगल। उसने कहा कि मैं जो है ना शवाज रीगल पी कर आया हूं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी थोड़ी सी दो। इतना डायरेक्ट झूठ इसके सामने बोला जा रहा है, और इस बंदे के मुंह में इसने कहा कि कहीं नहीं कहीं कुछ लिखा तो होगा ना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए कहते हैं कि गद्दार को जो है ना वो दुश्मन से पहले गद्दारों का नहीं अमर भाई हुदी गया है। और नहीं अहमद सयाल भाई, वो नहीं खुद गया, किसी ने उसको ब्लॉक किया। अभी मेरे दूसरे मोबाइल पे आ जाएगा फ़ोन, 1 मिनट ठहरे, अभी तक तो नहीं आया। नॉर्मल तो आ जाना चाहिए इस वक्त तक। मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी ने उतारा नहीं है या ब्लॉक नहीं किया। आपने ब्लॉक लिस्ट चेक की है? मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। मेरा गालिब गुमान इसी तरफ है कि उसको किसी ने उतारा है, बल्कि ब्लॉक किया है, क्योंकि वो नीचे भी नहीं है। बात ये है कि उसके जानवर होने में, बुद्धू होने में, डंगर होने में, बेवकूफ़ होने में, बेअक्ल होने में कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। मैं यही उसको कह रहा था जब आप सब तशरीफ़ लाए हैं कि भाई अभी तो 4 बंदे हैं, जब 40 बंदे हो जाते हैं तो तुम्हें ऐसे होता है जैसे तमूड़ियाँ लड़ी होती हैं, शुरली की तरह। तुम कभी इधर पैरों में घूमते हो, कभी उधर घूमते हो, बदतमीजियाँ करते हो और हेरा फेरियाँ करते हो और जानबूझकर अगले को इरिटेट करते हो। हालांकि मुसलमानों के बीच में गलतियाँ मौजूद हैं, उन गलतियों को सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, उन गलतियों के लिए झगड़ा नहीं किया जाता। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। करें बात जी। कोई बात कर, कादियानी तो नहीं ना है? अगर होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? उसके पास उसके लिए इस्लाम नहीं है, उसको कुछ नहीं कहना।
अच्छा अच्छा, एक ये जो लिखा हुआ है पीर असली हनफी जी, आपका मसलक क्या है? जो बंदी है हदीस क्या है आप? ये जो आपके सामने 8-9 बंदे बैठे हुए हैं खामोशी से और एक बंदा बात कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये उन सारे बंदों की खामोशी से ज़्यादा अहम है? नहीं वो जी खाम जी, खा बैठे हाँ, हुए। मैं कुछ बताना चाहता हूँ ना, इसलिए। तो आप बता दें फिर। अच्छा, मुझे ये लगता है जो खास करके 2-3 मसालिक वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, इन लोगों ने अगर नबी पाक की जो शानें हैं जो अल्लाह पाक ने उनको दी हैं, उनको अगर बयान करते रहते ना जैसे अल्लाह ताला ने दी हैं, तो ये जो कादियानी है ये इतना आगे ना बढ़ते। इनके इन उलमा की, खास करके इन 3 मसाले के उलमा ने इतनी ज्यादती की है, नबी को अपने जैसा कहा, जैसे हमें वैसे वो है। अच्छा देखो ना, अभी ये फजल ताहर साहब, मुझे नहीं आप पता, मैं जो है बैठा था। फजल ताहर साहब, आप ये देवबंदी, वहाबी और अहले हदीस की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, मुझे बताएंगे कि ये दुनिया में जो कुल मुसलमान हैं, तकरीबन कोई 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, तो इनमें मेजॉरिटी किस मसलक की ज़्यादा मेजॉरिटी है? ये अहले सुन्नत की है या ये देवबंदी, वहाबी और ये अहले हदीस वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की है, इसमें तो कोई शक अहले नहीं सुन्नत। है। अच्छा, अहले सुन्नत जो है उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी तारीफ नहीं बयान फरमाई? कि ये अहले सुन्नत ही तो करते हैं। ठीक है, अहले सुन्नत करते हैं तो वो मेरी हैं बात मेजॉरिटी में। मैं सुने ना, अहले सुन्नत करते हैं वो हैं मेजॉरिटी में, तो उनकी हम्दो सना करने से कादियानी क्यों नहीं रुके, और ये जो थोड़े से हैं इनके ना करने से कैसे बढ़ गए, ये जरा मुझे समझा दें। नहीं आपको मैं बताता हूँ। जी। होता है ना आलम, जो आलम दीन होता है ना, वो असर रखता है लोगों के ऊपर। अच्छा, पहले बात सुनो, मैं बहुत सादा आदमी को आलम दीन नहीं हूँ, या बात क्लियर रखेगा। नहीं, बात बिल्कुल सादा है ना, आप इसकी रेशियो ऐसे कर लें कि अगर देवबंदी, वहाबी दुनिया में 20% है तो 80% अहले सुन्नत है। मैं अर्ज करता हूँ, अगर 80% लोग जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान करने से, नात बयान करने से उनके असर की वजह से कादियानी नहीं रुके, तो अगर 20% ने नहीं बयान की उनकी शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उससे कादियानी कैसे बढ़ गए? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रुके नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो खत्मे नबूवत पर जो काम है सुन्नत ने किया ना। अगर आमिर अजीज भाई को बात करने दें तो मेरे ख्याल में तो जी बोलें बोलें, आप जो बात कर रहे थे। आपने जब तक मेरी बात सुनी हो ठीक है, वरना मैं कोई नहीं, बात आपकी समझ नहीं आती ना कि जो लोग 80% हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उनकी शान बयान करते रहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, तो उनके असर की वजह से ये नहीं रुके, लेकिन 20% के ना करने की वजह से ये बढ़ गए हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आती। मैं अर्ज करता हूँ जी करें। जो आलम दीन होता है ना, वो रहनुमा होता है लोगों का। ठीक है। जो जितना बड़ा होता है उतना, मतलब एक चीज देखे ना, जैसे कि दो बंदियों के तकी उस्मानी है, एक दो बंदियों के एक सादा आदमी, जैसे एक मैं अहले सुन्नत का एक आम फर्द हूँ, एक बात मेरी है और एक उसकी बात है जो उनको लोग सुनते हैं। मैं मिसाल जैसे मेरे साहब है, या जैसे मौलाना खादिम साहब रिजवी है, या जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वो भी हमारे। एक वो होता है जिनको लोग फॉलो करते हैं, एक वो असर रखते हैं, एक आम इंसान जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं। मैं आपको जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आप हैं, शायद आप बड़े आलिम दीन, मुझे पता नहीं किसी का। नहीं, मैं भी आपसे जैसा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब खादिम से रिजवी कहेगा ना कि जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि एक आलिम दीन जिसको बात मुक्सर किया करे ना, कि मैं समझ गया हूँ कि एक आलिम दीन जब बात करेगा जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसकी बात का ज्यादा असर है, आम बंदे की बात का उतना असर नहीं। ये कहना चाहते हैं ना आप? जी देखे ना, जब खादिम से रिजवी अगर नबी पाक की शान बयान करेगा, नबी पाक की सवारी की शान बयान करेगा कि सवारी की शान या नबी पाक का आलम क्या है, तो लोगों को ज्यादा लोग उनको फॉलो भी करेंगे, सुनेंगे भी।
ज्यादा असर होगा एक लोगों को। आदमी दूसरी साइड का बड़ा आदमी ये कहे कि नबी हमारे जैसा है, बात कौन नुकसानदेह है? नबी पाक की अच्छा मुझे बताएं, इन मैं वही लोगों बात, ने मेरी बात सुन लेना, अपनी बीन ना ना बजाया करें, अगले की भी सुन लिया करें कि आपने जो बात बयान फरमाई है वो ये है कि आलम, देखिए अगले की बात सुन लिया करें ना। आलम दीन जब बात करता है उसका ज्यादा असर होता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आम बंदा बात करे उसका असर नहीं होता, ये भी ठीक है। एक आलम दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाता है, दूसरा आलम दीन उनकी शान कम करके बयान करता है, तो दोनों को लोग फॉलो करते हैं, दोनों की बात का असर होता है। ये है आपकी बात का टोटल लुब्बे लुबाब। तो क्या दुनिया भर में जो 80% लोग हैं उनके उलमा की तादाद 20% वाले लोगों से कम है या ज़्यादा है? जी मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल क्या है, दोबारा प्लीज कहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो तादाद में 80% है मुसलमानों में अहले सुन्नत वल जमात, उनके उलमा की तादाद ज़्यादा है या जो 20% हैं देवबंदी वहाबी वगैरह उनके उलमा की तादाद ज़्यादा है? नहीं, अहले सुन्नत उलमा की जैसे अच्छा, अब अहले सुन्नत की आवाम भी ज़्यादा है, उनके उलमा की तादाद भी ज़्यादा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, तो उनकी तबलीग से कादियानियों का बढ़ना क्यों नहीं रुका? और 20% को आप ब्लेम कर रहे हैं कि उनके ना करने से वो बढ़ गए हैं, ये बात समझ नहीं आती। इसका मतलब है 20% जो लोग हैं उनके उलमा ज़्यादा असर रखते हैं 80% वालों से। ज्यादा असर रखने की बात नहीं कर रहा, ये तो है भाई कि ज्यादा जो- असर रखते हैं तो ही ये रिजल्ट निकला है ना कि कादियानी बढ़ गए हैं। बात समझने की कोशिश करें, ये जो 20% लोग हैं, जो 20% ये लोग हैं, ये है ना। अच्छा जी जी और हैं, अपने आप को कादियानी भी तो नहीं ना कहते, मैं भी जी मानता नहीं हूँ कहते। कादियानी है भी नहीं है, ठीक है। मुसलमान है, लेकिन हाँ जी। उन्होंने ज्यादती की है ना, ये आप एक्सेप्ट तो करें ना। नहीं आप कह रहे हैं ना ज्यादती, मैं तो नहीं कह रहा ना, ये आप कह रहे हैं, तो मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ज्यादती की है तो इसका मतलब है उन 20% वालों का असर ज़्यादा हो गया है लोगों पे, दुनिया पे, कि वो उनके असर की वजह से लोग कादियानी होते जा रहे हैं, और जो 80% है उनका कोई असर नहीं है कि वो लोग कादियानी होने से रुक जाए। होते नहीं जा रहे, मैं ये नहीं कह रहा होते जा रहे हैं, मैं ये और जरूर क्या कह रहा हूँ कि उनकी वजह से उनको सपोर्ट जरूर हुई है। तो उस सपोर्ट से कोई फायदा उनको, उस सपोर्ट को 80% वाले खत्म नहीं कर सके? भाई ये देखे ना, बात सुने ना पहले। अगर आप ये बात करें मेरे भाई, तो कसूर बनता है 80% वालों का कि उन्होंने तबलीग इस अंदाज में नहीं की कि वो 20% वालों का असर ख़त्म कर सकें। अब देखें ना, एक तरफ 80 लोग हैं वो बयान कर रहे हैं, वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, एक तरफ 20% है वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। आप कहते हैं जो 20% हैं उन्होंने अगर ठीक की होती तबलीग तो उसका असर ज़्यादा होना था, यानी आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 80% वालों से सही नहीं हुई तबलीग, ये 20% वालों के मोहताज हैं वो 80% वाले भी, कि ये सही अगर करते ना फिर ये कादियानी इतने ख़त्म हो जाना। तो आप 80% वाले क्या कर रहे हैं? ये तो शर्म वाली बात है ना, ये तो बात से शर्म बात है कि मेजॉरिटी में भी हैं, हमारे उलमा भी ज़्यादा हैं, फिर भी हम 20% वालों का असर ही ख़त्म नहीं कर सके। तो मेरे भाई ये तो आप खुद हमारी जो है वो इंसल्ट कर, हमारे उलमा की इंसल्ट कर रहे हैं आप। नहीं, आप उलमा की इंसल्ट नहीं कर रहा, ये जो सवाल है ना, और किसकी कर रहे हैं? तो फिर बात मैं नहीं, आप उलमा की इंसल्ट नहीं कर रहा। जो अच्छा आप मुझे बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद ये लिखा है जिस, देखे ना, देखिए इसका कादियानियों से कोई लेना देना नहीं, आप इसको कादियानी से ना लिंक करें। बात सुने, आप बार-बार कादियानियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ घटिया अल्फाज लिखे हैं या गलत अल्फाज लिखे हैं तो वो वबाल उसका उसके सर पे है, इसका कादियानियों से लेना देना कोई नहीं है। मैं कादियानी को दफा करने के साइड पे, वो तो तो अभी आप तो असल में बात ही ये कर रहे हैं कि कादियानी इस वजह से कादियानी को सपोर्ट मिली है और वो फल फूल गए। बात सुनो ना, आपने बात ही बुला देनी यार जो मैंने करनी थी। भुलनी चाहिए, तानू भुलनी भी चाहिए वैसे। क्यों भूलनी क्यों चाहिए? क्योंकि आप 80% वालों की इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ। मैं जब नहीं बात सुनना, मैं जब इन बोर्ड पे आता हूँ जो खास करके इन 3 मसालक में से कोई होता है ना, तो वो एक बात कर रहा होता है बार बार, कब्र के पुजारी, कब्र के पुजारी। हाँ तो ठीक बात करते हैं ना, कब्र पूजनी चाहिए।
नहीं नहीं, कब्र को पूजना कैसे चाहिए। कि- ओ भाई हम पर जो इल्जाम है वो हमारे जहलों की वजह से ओ है। भाई आपके, अच्छा आप हम पर एक्सेप्ट कर इल्जाम रहे हैं कि हमारे आपके जहलों की जाहल वजह से हैं, है। जो आप अगर पर आप इल्जाम है एक्सेप्ट वो कर रहे हैं कि आपके आपके दीनों की जाहल वजह लोग से है। हैं तो फिर वो सही बात करते हैं ना। अरे क्या हम कब्र पर को जो पूजना इल्जाम है चाहिए? हमारे मेरा- जहलों की वजह से मेरा है। ख्याल है आप आगे पर जो चलेगा इल्जाम है वो साहब। आपके मुफ्तियों के ऊपर है, आपके ओ आलिम दीन नहीं के भाई, ऊपर है, मुफ्तियों आपके के जो ऊपर मुफ्ती किसने बड़े कहा है बड़े जी? उसके ऊपर है। आपके मुफ्ती जो है वो कब्रों को पूजते हैं, नहीं पूछते। तो फिर आप गुस्सा किस बात का आला कर रहे हजरत हैं? ने आला हजरत तो ये भी लिखा है कि कब्र से कितनी दूर खड़े होकर आपने कुरान हाँ पढ़ना जी, है। उन्होंने तो वाज़े लिखा हुआ है ना कि कब्र को सजदा तज़ीमी भी हराम है, तो हराम है, सजदा इबादत हाथ भी नहीं शिर्क लगाना। है, सजदा तज़ीमी हराम है। तो जी। कैसे कोई कह देगा कि भाई ये उलमा करते हैं? अगर नहीं करते हो आपको गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, आप कहें ठीक है भाई कब्र नहीं पूजनी चाहिए, जो पूजता है फड़ के छितर मारो उसके। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ, तो बस आपको इस मामले में उनका साथ देना चाहिए कि भाई बिल्कुल हम आपके साथ हैं, कब्र पूजना शिरक है या हराम है, लिहाजा इसको जो है नहीं पूजना चाहिए, हम ये आपके बड़ा साथ। दिल होता है जो गैर की भी सही बात को माने हाँ और हाँ जी। गैर से मुराद कादियानी नहीं है। अच्छा मुझे कादियानी आप तो बताएं कुरान कि भी मिर्जा पढ़ेंगे तो हम गुलाम नहीं अहमद सुनेंगे। कादियानी जब मरा था तो मरने से कुछ महीने पहले उसने जनाब एक आलम दीन के साथ उनके ख़िलाफ़ एक दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये जो बंदा है इसमें और मुझ में फ़ैसला कर दे, ये मुझे झूठा कज़ाब दजाल कहता है जबकि मैं सच्चा हूँ, लिहाजा हम दोनों के दरमियान फ़ैसला कर दे, जो झूठा है वो उसको सच्चे की ज़िंदगी में ज़िल्लत के साथ मौत दे दे। वो आलम दीन कौन थे? मुझे नहीं लम। मुझे नहीं इल्म। अच्छा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक जो है ना वो चैलेंज दिया था कि जनाब मैं जो पेशगोइयाँ करता हूँ ना, तो ये लोग कहते हैं कि पेशगोइयाँ झूठी निकलती हैं, सच्ची नहीं निकलती, तो मैं जनाब उस बंदे को इनाम दूंगा जो इधर कादियान में आके मेरी पेशगोइयों की पड़ताल कर ले। फिर उसने एक आलम दीन का नाम लिया कि उसको भी चैलेंज है, अगर इधर आके मेरी पेशगोइयों की पड़ताल करे, अगर मेरी पेशगोई झूठी निकले तो फ़ी पेशगोई उसको इतने पैसे इनाम दूंगा। ये आलम दीन कौन था? अच्छा जब बात सुनना असल में इसका कोई है इल्म आपको? नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, इसके बारे में ये जो कादियान है, ये जो गांधे, इसके बारे में ये जो जितने भी मामलात है मुझे इनका इल्म नहीं है, ना मैंने पढ़ा। बस फिर इल्म नहीं है मेरे भाई, तो ये बराड़ जो है ना कादियानियत के मुतल्लक है, अगर इल्म नहीं है तो फिर आप गुफ्तगू ना करें। ये जो बंदा उधर कादियान में जा पहुंचा था कि भाई तुमने चैलेंज किया है कि मेरी पेशगोई की पड़ताल करो, और फिर मिर्जे ने साथ में ये पेशगोई भी की थी कि ये जो आलम दीन है ना ये कभी कादियान में नहीं आएगा, और वो आलम दीन कादियान में जा पहुंचे थे, उन्होंने जा कुंडी खड़काई थी मिर्जे गुलाम कादियानी की कि निकल बाहर तेरी पेशगोई की पड़ताल करने वास्ते आ मैं आ गया, तू क्या सी इन्हें कदे नहीं आना। वो आलम दीन थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, और वो थे अहले हदीस जिसको आप कहते हैं वाबी। और जिस आलम दीन के साथ खिलाफ मिर्ज़े ने दुआ की थी कि या अल्लाह इसमें मुझ में फ़ैसला कर दे, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी उसकी ज़िंदगी में ज़िल्लत की मौत मर गया था, वो भी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे और वो थे अहले हदीस। ठीक है जी। जब 1974 की कार्रवाई हुई थी तो असम्बली में अहले हदीस उलमा की भी कसीर तादाद थी और देवबंद उलमा की तादाद भी कसीर थी, अहले सुन्नत उलमा की भी कसीर तादाद थी, शिया के मसलक के उलमा भी वहाँ पे मौजूद थे। सब की पिक्चर्स आज मौजूद हैं, हाथ में हाथ डाल के खड़े थे कि भाई हम इस कादियानियत के कुफ्र के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे हैं। और आप यहाँ पे आके ये बात कर रहे हैं कि जनाब जी देवबंदियों ने तो वाबियों ने तो सही काम नहीं किया, तो उनकी वजह से जनाब ये कादियानियत पनप गई है। आप ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने बड़ों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुझे बताएं मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब कौन थे? मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब को आप जानते हैं? ये मुसलमान कह सकता है? अच्छा, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। वो कौन थे? देवबंदी थे, वाबी थे, क्या थे? ख्याल से अहले सुन्नत में थे। अहले सुन्नत में थे। और मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी वो भी अहले सुन्नत में थे। अहले सुन्नत में थे। वो आप उनसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। वो एक साइड पे मुफ्ती महमूद साहब जो थे देवबंदी थे, उनको फिर अहले हदीस उलमा को फिर शिया उलमा को वो हाथ में हाथ डाल के खड़े थे कि भाई हम इस कादियानी कुफर के ख़िलाफ़ सब इकट्ठे हैं। वो आप उनसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। उनको नहीं था इस बात का पता कि ये देवबंदियों की वजह से तो इनको जनाब अली सपोर्ट मिल रही है। नहीं, एक बात ये जो मैंने बात की ना पहले साहब से शुरुआत में, ये बात मैं उसी बात के ऊपर हूँ कि अगर अच्छा, इन्होंने आपकी सुन कर फंसी हुई है। पाक अल्लाह पाक ने शाने दी है ना,
अच्छा लोगों तक पहुंचाते, वही वो अच्छा। बात उधर ही है। देखिए बात तो सुने, फिर ये इन उलमा कराम को नहीं था पता कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इन्होंने लोगों तो तक उन्होंने नहीं बताई। पहुंचाई? बात सुने, मैं जो नहीं, ना, मौलाना शाह मैं नूरानी यार साहब को इस बात का मैं पता था या मदरसे नहीं? एक दिन नहीं गया, मैं मदरसे हाँ एक पता दिन चल रहा है ना, वो पता चल रहा है, गए होते तो थोड़ा बहुत मैंने आपको अकल सबसे शोर पहले होता। बताया आपको, मुझे मैं सबसे बताएं कि पहले मौलाना बताया कि शाह मैं नूरानी बिल्कुल साहब को इस सादा बात बंदा का हूं। पता था कि इन्होंने शान बयान नहीं की ठीक तरीके से? जी जी, बात मुझे कैसे पता लगा कि नबी का ख्याल नमाज में है, नमाज नहीं होती? नहीं नहीं, वो मुझे जिसने कैसे पता? बात की है, आप किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो जिसने भी जी, ऐसी को बात बात सुना। लिखी है, गलत लिखी है। मैं जी, जो बात तो आपसे नबी पूछ का रहा हूँ कि ख्याल मौलाना नमाज में शाह नमाज नहीं नूरानी होती। साहब को, सुने ना, मौलाना शाह नूरानी साहब को इस बात का पता था कि किसी ने ये लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती? नूरानी साहब को पता था? मुझे बात सुनो ना, मेरी बात सुनो आप। नहीं, बात नूरानी ये साहब को पता था आप इस ये बात का जो या नहीं? चीजें मुझे मैंने कही है, ये किन की तरफ से आया ये वो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये नूरानी साहब को पता थी या नहीं? नहीं पता होंगी, क्यों नहीं पता होंगी? पता होंगी का क्या मतलब है? आप मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, आपको पता है वो इतने बड़े आलम दीन जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग की, उनको नहीं पता था? नहीं पता था, क्यों नहीं पता था? तो पता था तो वो इसके बावजूद वो देवबंद और अहले हदीस उलमा के साथ क्यों खड़े थे? बात सुने, किसी एक मामले में अगर खड़े हुए हैं, मतलब इनको काफिर भी तो हम सब इकट्ठे हैं ना कि ये काफिर है, इसमें तो आज भी हम तो इकट्ठे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भाई ये इनकी वजह से कादियानी को सपोर्ट मिली है? बात सुने, एक तरफ आप कहते हैं हम इकट्ठे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इनकी वजह से सपोर्ट मिली है कादियानी को। जब आप कहेंगे कि नबी वड्डे प्राज नहीं इज्जत फिर वही करनी। बात है भाई, आप फिर आपकी सुई हमारे पर अड़ी जैसे। हुई है। यार, मैं कहता हूँ कि इन उलमा को ज्यादा पता था देखे या ना, आपको ज्यादा इन्होंने पता लिखा है? हमारे जैसे हैं, इन्होंने तो लिखा भाई वो नबी पाक जिसने हमारे लिखा जैसे उसको हैं। छोड़े, आप जिसने भी लिखा है वो क्यों अल्लाह से छोड़े सजा उसको? पालेगा। नहीं, ये अगर इस सपोर्ट नहीं है, बात जिसने लिखा है नबी हमारे जैसे इस बात से कादियानी को सपोर्ट मिलती है? देखे ना, उन्होंने कहा जो नबी हो गया साठ रंग का, तो कोई भी हो और भाई इस बात से कादियानियों को सपोर्ट मिलती है या नहीं? फिर उन्होंने लिखा जी जो चलो फिर उन्होंने लिखा जी, फिर उन्होंने लिखा है जी, फिर उन्होंने लिखा है, दो चार बातें आप रट के आ गए, फिर उन्होंने लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ भी इससे कादियानियों को सपोर्ट मिलती है या नहीं? किसी मुसलमान ने कादियानियों को इससे सपोर्ट मिलती है या नहीं? पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानता हूँ उनको पता था कि इन्होंने ऐसी बातें लिखी हुई हैं? जी, पता थी बिल्कुल। वो क्यों अहले हदीस उलमा के साथ मनाजरा लाहौर में बैठे हुए थे 1901 में? मैं वो बात कर रहा हूँ, वो तो आज भी हम मैं वो इकट्ठे क्या हैं। बात कर रहे हैं आप? कादियानी को काफिर कहने में उनको तो आज भी हम उनको इकट्ठे हैं। ज्यादा इल्म है आज या भी आप कादियानी जिसने को- मदरसे का मुंह नहीं ये देखा तो इसको एक ज्यादा ही इल्म है? ना। मैं मदरसे में नहीं गया, मैं सादा आदमी बता रहा हूँ आपको। तो आप सादा मुझे सादा आदमी हैं, आदमी लेकिन क्यों आप बताएगा अपने कि जो ये बड़े हमारे जैसा है? उलमा जो बुजुर्ग हमारे अकाबरीन गुजरे हैं, उनका जो अमल था उसके खिलाफ आप बोली जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं मदरसे भी नहीं उनके गया। खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ आज भी हम इकट्ठे हैं इस बात पर कि कादियानी हाँ तो फिर काफिर है। इकट्ठे हैं तो फिर ये आके ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है मैं इधर जी ड्रामेबाजी नहीं कि कर रहा, इनकी मैं वजह से हकायक इनको बयान कर सपोर्ट रहा मिली हूं है? जनाब। मैं हकायक बयान कर रहा हूँ कि एक मुसलमान वो ये क्यों हकायक कहे, आप जाके नबी पाक तो हमारे जैसा किसी है। और जगह पे बयान करें जहाँ देवबंदी सुन्नी बरेलवी झगड़ा चल रहा है ना, उधर जाके बयान करें। ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है, ये खत्म नबूवत का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अहले सुन्नत, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, भाभी, शिया सब इकट्ठे बैठ के काम करते हैं। तो आप दरमियान में तफरका डालने वाला काम ना करें इधर, मेहरबानी आपकी। जी शुक्रिया। ओके, हाँ मेहरबानी, दोबारा इधर आके ऐसी बात नहीं करनी। आज आपको इज्जत से समझाया है, अगली बार आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे। बड़ी मेहरबानी आप। इन्होंने अपना नाम बताया था। ओहो चले गए। लिटमस टेस्ट ते लै लेना सी ज़रा भाई, वो पता नहीं लिटमस टेस्ट पास भी करदा कि फेल हो जाता। एक गल, दूसरी गल है कि वो अगर कादियानी शक्कर शुबे ना बता सी अमर भाई। उन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है जी, रंग बिरंगे लोग होते हैं। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बला बैठी है, आते ही इसने जनाब वाले वो साद वाला काम शुरू कर दिया है। तो छोड़े, ऐसे लोगों को जरूरत ही नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कोई बात अंदर से और निकलती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता ना, लिटमस टेस्ट लेते। और दूसरा ये कि कादियानियों के कायद का उसको पता नहीं। अगर कादियानियों के कायद का नहीं पता, कादियानियों के नज़रियात का नहीं पता, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि फ़लाँ कम्युनिटी, फ़लाँ सेक्ट, फ़लाँ फ़िरका, फ़लाँ ग्रोह
اس سے ان کے عقائد اور نظریات کو سپورٹ ملی. بھائی ان کے عقائد اور نظریات کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فلاں گروہ نے ان کے عقائد اور نظریات کو سپورٹ کیا ہے؟ جس طرح ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ بھائی اس نظریے سے ان کو